Good morning everyone. In last class we have discussed about the reading section and I hope you have started reading passages, comprehension passages carefully. You try to read the passages and then try to answer the questions also. Today we are going to discuss about the article writing. What is article writing? How it is written? What should be written in an article? And how many words should be there? एक आर्टिकल लिखने के लिए हमें कितने वर्ड्स होने चाहिए? In fact, 100 to 150 words would be there. An article is generally written for the newspapers, magazines or journals. You can give your idea. Any writer who is writing an article, they can give their personal opinion, their view according to about any issue. Whatever issue, whatever the topic, you have to read it carefully. What is the topic? You form the sentences, you form the causes, effects, solution, step by step. For article writing, you have to start with these are the points. You can start the article. You can start writing article. So first point is title. Second one is name of the writer. Third one is introduction. Fourth one is body. And fifth one is conclusion. So first of all, you have to choose the title for the topic. Title is very important. सबसे पहले टाइटल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब भी कोई आर्टिकल आपका आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करेगा सबसे पहले वो टाइटल देखेगा, इसलिए टाइटल शुड बी अट्रैक्टिव. जस्ट लाइक वाटर के लिए आप लिख सकते हैं वाटर इज प्रीशियस और वाटर कंजर्वेशन, लाइक कुछ भी इम्पोर्टेंट, कुछ भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए टाइटल. द नेक्स्ट पॉइंट इज नेम ऑफ द राइटर. हु इज राइटिंग दिस आर्टिकल? सपोज you are writing, whatever your name should be written here. First of all title, then A, B, C, whoever, जो भी आर्टिकल लिख रहे हैं उनका नाम यहाँ पे होना चाहिए. ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल जो लिख रहे हैं कौन लिख रहे हैं और उनका ये पर्सनल ओपिनियन क्या है, उनका व्यू क्या है किसी टॉपिक के बारे में, वो क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं. क्योंकि जब आप उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, पूरा बॉडी लिख लेंगे उसका, उसके बाद आपको कंक्लूजन भी देना होगा. इसलिए आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना जरूरी होता है. आर्टिकल बाय ए, आर्टिकल बाय बी, आर्टिकल बाय सी और आर्टिकल बाय एक्स वाई जेड, व्हाटएवर बी द नेम. ओके. थर्ड पॉइंट इज इंट्रोडक्शन. यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक. वाटर, वाटर क्या है? वाटर प्रीशियस है. कितना परसेंट ऑफ वाटर हमारे पूरे अर्थ पे है, उसपे कितना परसेंट वाटर हमारे लिए यूजफुल है, ड्रिंकेबल वाटर कितने हैं. हम लोग को अपने हर एक्टिविटीज के लिए, फॉर परफॉर्मिंग ऑल द एक्टिविटीज we need water. So what is the percentage of drinking water? And drinking water must be fresh and clean. आपका drinking water, आपका cooking water हमेशा fresh और clean होना चाहिए. And you can use the recycled water for other activities. आप bathing के लिए, watering the plants, for cleaning your clothes, for cleaning your utensils, you can use the recycled water also. So all these things you can give in the introduction, body, and in body also you can give the cause and effect. क्यों हमारे पास, क्यों हमें वाटर कंजर्वेशन करना है? if you are giving the title water is precious or water conservation, so you should write in the body that why water is precious, why we should conserve it. We have to conserve the water for the future, for our next generation also. We have to think about them. So in body you can write one paragraph or two paragraph. You have to write the causes and effect. क्या causes है कि हमारे यहाँ पानी कम हो रही है या ड्रिंकेबल वाटर और यूजेबल वाटर का लैक हो रहा है, स्कैरसिटी हो रही है, उसके लिए उसके फ्यूचर में उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये भी आपको उसमें लिखना होगा कि अगर हमने आज वाटर कंजर्वेशन नहीं किया तो नेक्स्ट जनरेशन को हमारे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, फ्यूचर में हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं. उसके बाद हमें उसके सॉल्यूशन के बारे में भी आप जो सोचते हैं उसके बारे में आप सजेस्ट कर सकते हैं, कैसे वाटर कंजर्वेशन होना चाहिए, क्या हम उसके लिए कर सकते हैं. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट वाटर इज यू कैन सेव द वाटर बाय रेन हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू कंजर्व द वाटर. रेन इज द गिफ्ट ऑफ गॉड. ये नेचुरल है जिसको हम कंजर्व करके रख सकते हैं, जिसको हम इकट्ठा करके रख सकते हैं ताकि हम उसको पूरे ईयर यूज कर सकते हैं. जब हमें पानी की कमी हो, जब कहीं पर सूखा पड़ जाता है, तब हम उस रेन वाटर हार्वेस्टिंग से कलेक्ट किए हुए पानी को हम पूरे ईयर यूज कर सकते हैं. इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग इम्पोर्टेंट है. अब आपने ये सारी चीज देख ली कि कॉजेस क्या है. बिकॉज वी आर वेस्टिंग वाटर, दैट्स व्हाई देयर कैन बी स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन द फ्यूचर.
हम लोग वाटर को वेस्ट कर रहे हैं छोटे छोटे काम के लिए, जिस काम को हम थोड़े से पानी में भी कर सकते हैं उसके लिए ज्यादा पानी यूज करते हैं। क्लीन एंड फ्रेश वाटर को भी हम टॉयलेट फ्लश करने के लिए, क्लीनिंग द हाउस, क्लीनिंग द क्लॉथ्स, वाटरिंग द प्लांट्स, इन सारी चीजों के लिए यूज कर लेते हैं। तो हमें इस सारी चीजों पर ध्यान देना होगा, वाटर वेस्ट नहीं करना होगा। तो ये सारे कॉजेज हैं जिससे वाटर वेस्ट हो रहा है। उसका इफेक्ट क्या होगा फ्यूचर में, हमारे फ्यूचर जनरेशन को फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छे फ्रेश और क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आज भी बहुत सारी ऐसे जगह हैं जहाँ लोगों को पानी के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। पानी लेने के लिए लोगों को काफी दूर दूर तक जाना पड़ता है। अब उसके बाद हमें क्या लिखना है, कंक्लूजन। इन कंक्लूजन यू हैव टू गिव योर ओन ओपिनियन अबाउट द वाटर कंजर्वेशन। कैसे आप वाटर को कंजर्वेट कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें बचा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप अपने सजेशंस दे सकते हैं। वाटर प्रीशियस क्यों है, या वाटर को कंजर्व करना जरूरी क्यों है, ये सारे हम अपने कंक्लूजन में लिख सकते हैं। किस तरीके से हमको ये करना है, तो ये आपका अपना ओन ओपिनियन, हर लोगों का अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। लोग अपने अपने ओपिनियन दे सकते हैं और इसके बारे में सजेस्ट कर सकते हैं कि हम इन सारे कामों को करके हम वाटर को सेव कर सकते हैं। सो अगर एक टॉपिक आपको दिया गया वाटर पर, अगर ये सारे पॉइंट्स आपको पता है आर्टिकल राइटिंग के, तो आप किसी भी एक टॉपिक पर ये सारे पॉइंट्स यूज करके एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। Your article should not be more than this. Only 100 to 150 words you have to write. So you have to decide. You have to decide what type of article you should write and how many sentences you have to form. So this is the article writing. Everyone understand? And now I have given you the example of water. Now you can start writing on other topics also. See, the most important topic in our country. You can start writing about agriculture. Second one, education system in our country. You can take any topic और उस टॉपिक पर आप इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट आप कुछ भी आप अपने मन से ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे कंट्री के। कुछ स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स आर गोइंग अब्रॉड फॉर देयर हायर एजुकेशन, तो आप उस टॉपिक पे भी कुछ लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड फॉर द हायर एजुकेशन। सो इस तरह के टॉपिक्स आप चूज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप आर्टिकल्स लिखिए। आई होप कि आपको आर्टिकल राइटिंग समझ में आ गया होगा और आप टॉपिक क्रिएट कीजिए। आपके पास अगर बुक्स हैं तो बुक्स में भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, एग्जांपल्स होंगे, आप उनको अच्छे से पढ़िए और कुछ क्वेश्चंस आप खुद से भी कुछ टॉपिक अराइज कीजिए। टॉपिक अराइज करके आप आर्टिकल राइटिंग 100 to 150 वर्ड्स में आप आर्टिकल लिख करके रखें। जब भी हमारा स्कूल स्टार्ट होगा हम लोग उसको एक बार देखेंगे। ओके, थैंक यू।